Welcome student. Today we learn an important topic of principle of mathematical induction as you see on your screen, and this is lecture 2 of that particular topic. In lecture 1 we can introduce you introduction of principle of mathematical induction. Now in second lecture we can discuss about Peano's axioms. First of all, we have to aware who is Peano. Okay, as you see on your screen, G. Peano is an Italian mathematician who discovered the Peano's axioms in 1899 AD. जैसा कि जो 1899 AD लिखा गया है, इसे हिंदी में बोलते हैं 1899 ईस्वी. एंड पियानोज एक्सियोम जो पियानो ने दिया था, जो यानी एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, एक इटली के गणितज्ञ थे. जो पियानो का एक्सियोम था वो टोटली बेस्ड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर था. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जिसे काउंटिंग नंबर का संग्रह बोला जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. इनका जो एक्सियोम्स था, इनकी जो परिकल्पना थी, इसी पर आधारित थी. अब स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा. और जैसा कि हम सेट थ्योरी से जानते हैं कि अगर कोई भी अवयव किसी समुच्चय का है तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं: 1 बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड 2 बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर and 3 belong to the set of natural number and 7 belong to the set of natural number. And we know that 1 by 2 does not belong to the set of natural number. In mathematical formation we denote as you see on your screen. And 5 by 3 also does not belong to the set of natural number. In order to understand the Peano's axiom, first we have to understand some concept regarding that. So look at on your screen. If a belong to the set of natural number, now a plus, and this is nothing but a plus 1, and it can be said that post order number of a. Okay, for example, 1 belong to the set of natural number. Now 1 plus is a post order number of 1, that is 1 plus 1, this is 2. Okay, and again second example, 3 plus, this is nothing but 3 plus 1, and this is 4. Okay, and similarly 8, and 8 plus 1 is equal to 9. And similarly, and we know that from our conclusion, first is there is no natural number whose post order is 1. Okay, and now explain it. If a plus is equal to 1, now a be any number whose post order number is 1. Now suppose that, and this implies that a plus is nothing but a plus 1, and a plus 1 is again equal to 1. एंड फॉर्म 1 को हम RHS में भेज देंगे तो a इक्वल टू क्या होगा? 1 minus 1, that is 0, and 0 does not belong to the set of natural number, and so that 0 is the number whose post order number is 1, and 0 does not belong to the set of natural number. ये दोस्तों जो टॉपिक है मैंने आपको जो बताया है आगे आपके लिए काम आने वाला है. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट नहीं करती है जिसका अनुवर्ती मतलब पोस्ट ऑर्डर 1 हो. समझ में आया? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नाउ आगे देखिए, ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाना चाहते हैं. देखिए, 1 प्लस प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस इज नथिंग बट द पोस्ट ऑर्डर नंबर ऑफ 1, एंड दिस इज 1 प्लस प्लस हो जाएगा. एंड 2 प्लस इज नथिंग बट the post order number are 2, that is 2 plus 1 is equal to 3. And similarly this is 5 plus plus plus, and 5 plus is nothing but 5 plus 1, and 5 plus 1 is equal to 6, and 6 plus is nothing but 6 plus 1. Okay, and this is again 7 plus 1, 7 plus, and 7 plus is nothing but 7 plus 1, and that is 8. Okay, I hope you understand that particular step. And n be the set of natural number, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on. And from this we conclude that 1 be the smallest number of the set of natural number, and we can't be able to say that there exists the greatest number in the set of natural number.
सपोज दैट इफ बी से एक n be the set of natural number and then n plus 1 be also be the set of natural number. Okay, and from this we conclude that we can't be able to say that the greatest number exists in the set of natural number. Okay, and some of the Peano's axioms. First is 1 be the set of natural number. 1 be the set of natural number, and we know that from the set theory 1 be the smallest number of the set of natural number, so 1 belong to the set of natural number. It is clear. And second axiom is that उनकी दूसरी परिकल्पना जो थी फॉर एवरी, एंड दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर एवरी, हिंदी में इसे कहते हैं प्रत्येक के लिए। यदि ए कोई इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है, वह एन में है, ठीक है ना, तो ए प्लस मतलब उसका पोस्ट ऑर्डर नंबर a प्लस इज इक्वल टू a प्लस 1, वो भी इसमें होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक नंबर कोई भी आर्बिट्ररी चूज कर लेते हैं, आर्बिट्ररी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार स्वैच्छिक, यदि इसमें से आप कोई भी नंबर एक चूज कर लो, अगर मानते हैं लेट अस सपोज दैट हम इसमें 6 नंबर चूज कर लेते हैं, तो 6 को चूज करेंगे तो 6 प्लस 1 इसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, 5 प्लस 1 बराबर 6, एंड 6 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी प्रकार से हम कोई भी अगर कोई भी नंबर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से चूज कर लेते हैं, तो उसमें अगर प्लस 1 कर देंगे वो भी नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि इसी प्रकार अगर हम ए नंबर चूज करते हैं इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, तो ए प्लस 1 भी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ओके, एंड द थर्ड पोस्टुलेट इज फॉर एवरी ए बिलोंग टू एन के लिए ए प्लस 1 यानी इट डज नॉट इक्वल टू 1। यहां से हम कह सकते हैं अगर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या चूज करोगे इसमें से, तो उसका पोस्ट ऑर्डर नंबर जो होगा वो एक कभी भी नहीं होगा। आप इसमें से चूज करके देख सकते हैं, अगर आप एक भी चूज करते हो तो उसका पोस्ट ऑर्डर नंबर क्या होगा, 1 होगा, सॉरी 2 होगा। 1 प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, इस प्रकार से आप यहां से कोई भी नंबर ऐसा चूज नहीं कर पाते हो जिसका पोस्ट ऑर्डर नंबर 1 हो जाए। अगर आप 0 चूज करते हो तो 0 का पोस्ट ऑर्डर नंबर 1 होगा, लेकिन 0 आपका प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। हमने पहले ही आपको बताया है जो पियानोज का एक्सियोम्स है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो पूर्ण रूप से निर्भर है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, इसीलिए ये बात हमारी सिद्ध साबित होती है। ऐसा आप कोई भी नंबर चूज नहीं कर पाओगे, उसमें 1 जोड़ोगे कि आपको 1 मिल जाएगा। ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें 1 जोड़ेंगे और पुनः 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं चौथा एक्सियोम्स। चौथा एक्सियोम देखिए आप लोग, फोर्थ एक्सियोम, इफ ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन ए प्लस इज इक्वल टू बी प्लस। It means that post order number of A is equal to post order number of B if AB belong to the set of natural number, and we know that A plus is nothing but मतलब post order of a number A is nothing but A plus 1 and B plus is nothing but the post order number of B, and this is B plus 1, and from the LHS A plus 1 equal to B plus 1 if we can यदि हम A को RHS में भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा B plus 1 minus 1 and 1 minus 1, and we know that 1 and minus 1 both are additive inverse and it gives additive identity, मतलब ये 0 दे देंगे तो B plus 0, now it can be written in the form of that B plus 0, and we know that B plus 0 and 0 be the additive identity, and additive identity means 0 एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर में जोड़ा जाए तो खुद वह नंबर आ जाता है। So this is B and this implies that A बराबर B, and now so that AB belong to the set of natural number A plus is equal to B plus. A plus is nothing but the post order number of A, and B plus is nothing but post order number of B, and this implies that A बराबर B. Okay, now suppose that आपने कोई नंबर ले लिया 3 और 3 है ना, 3 और 3 प्लस का भी 4 होगा और 3 प्लस इसमें करेंगे 4 होगा, ठीक है ना, तब तो 3 बराबर 3 हुआ। अगर आप A को 4 ले लेते हो, B को 5 ले लेते हो, तो 4 प्लस का मतलब 4 प्लस 1 बराबर 5, 5 प्लस 1 का मतलब 5 प्लस 1 6, तो 5 बराबर 6 नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं अगर आप बराबर कोई नंबर लोगे तो आपको A प्लस का बराबर B प्लस का मिल जाएगा। समझ में आया? जैसे कि 4 बराबर ले लिए तो उसका 3 बराबर 3 मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसका पांचवा, इनका पांचवा एक्सियोम्स देखते हैं। पांचवा एक्सियोम्स, इफ ए बी द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर and this symbol you can study in the set theory and it stand for the subset. Subset means the all element of a contains in the set of natural number. Okay, now first, if a be the subset of n and this symbol is coming from the set theory, जैसा कि आप ये सिंबल देख रहे हैं ये सेट थ्योरी से आया हुआ है। इसका मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ एन। अब सबसेट का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं उप समुच्चय। यदि ए के सभी अवयव बी में होते हैं तो ए का बी का उप समुच्चय, ए को बी का उप समुच्चय कहा जाता है। ओके, हियर ए इज सबसेट ऑफ एन, इट मीन्स दैट ए के सारे अवयव समुच्चय एन में होंगे। ओके, एंड इसका फर्स्ट एक्सियोम कहता है, पांचवें में पहला एक्सियोम है, ये कहता है अगर वन बिलोंग टू ए, वन बिलोंग टू ए होगा। एंड सेकेंड कहता है इफ ए बिलोंग टू ए, ओके, एंड ए प्लस, इट मीन्स पोस्ट ऑर्डर नंबर ऑफ ए इक्वल टू दैट इज ए प्लस वन, इट इज बिलोंग टू द ए एंड दिस सिंबल इज से संबंधित है। इसे हिंदी में कहा जाता है से संबंधित है, इंग्लिश में बोला जाता है बिलोंग टू। ए बिलोंग टू ए, इफ ए बिलोंग टू ए तो उसका पोस्ट ऑर्डर नंबर ऑफ ए प्लस वन बराबर ए प्लस वन भी ए में बिलोंग होना चाहिए। जैसे कि अगर 5 ए में आता है तो 6 भी ए में आना चाहिए, 7 ए में आता है तो 8 ए में भी आना चाहिए। इफ 7 इज बिलोंग टू ए, दिस इंप्लाइज दैट 7 प्लस 1 इज आल्सो बिलोंग टू ए। अगर ऐसा होता है तो ए बराबर एन होगा। समझ में आया क्वेश्चन? ये एक्सियोम समझ में आया आप लोगों को? अब फिर से देख लीजिए एक बार, इफ ए इज सबसेट ऑफ एन, फर्स्ट इज इफ वन बिलोंग टू ए एंड सेकेंड इज इफ ए बिलोंग टू ए एंड ए प्लस इज आल्सो बिलोंग टू ए प्लस वन इज नथिंग बट ए प्लस वन। ओके, हमने आपको ये समझने के लिए बात लिख दिया है, हमको ये बात लिखनी नहीं चाहिए। ओके, ये आप समझ, इसको बेहतर समझ पाए इसलिए मैंने इस चीज को लिख दिया है। ओके, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए बराबर एन, and from this we know that we can say that a बराबर n। okay, and this postulate 5 is known as a postulate of induction, postulation of induction। हिंदी में कहते हैं इसे अभिधारणा की आगमन, अभिधारणा का आगमन। ओके, एंड from this so we can say that this postulate 5 is a consequence of principle of mathematical induction। अब हम इस पियानोस एक्सियोम्स के पांचवें पास्टुलेट से हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसे हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। ओके, यह पियानो एक्सियोम्स के पांचवें पास्टुलेट का परिणाम है। इसे जैसा कि इंग्लिश में हम लिखे हैं, सो वी कैन से दैट दिस पास्टुलेट 5 इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये जो हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत होता है पियानो एक्सियोम के पांचवें पास्टुलेट से आता है। जैसा कि अगर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल, उसमें हम आपसे कहेंगे यदि कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा, ठीक है, तो वह अगर n बराबर 1 के लिए सही है, देखिए पहले इसके पांचवें पास्टुलेट में पहला दिया गया 1 बिलोंग टू ए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है चीज, तो हम उसमें कहेंगे कि अगर वो स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए करेक्ट है, ठीक है, और n बराबर सेकेंड स्टेप में कहेंगे अगर वो n बराबर k के लिए सही है, जैसा कि हमने a लिए हैं, ठीक है ना, तो हम यह दिखा दें अगर वह स्टेटमेंट n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य है तो हमारी बात प्रूफ हो जाती है। जैसा कि इसमें कह रहा है इफ a बिलोंग टू a देन post order number of a is also belong to a and this post order number of a is nothing but a plus 1 and this is also contained in the set of a and this implies that a बराबर n। समझ में आ रहा है बात? ऐसा ही कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसा कि हमने आपको ये समझाया कि आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।